दोस्तों आज गांव दनौरी में जो मनीषा बहन की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है, बड़ा रोष प्रदर्शन किया गया है और हम दिखाते हैं दोस्तों, आप देखना चाहते हैं। के खिलाफ बड़ा रोष प्रदर्शन है। दोस्तों मनीषा बहन के रोष में कैंडल मार्च निकाला गया है और हम बात करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप मोदी सरकार से क्या डिमांड करते हैं? बच्चियों को इस तरह से बंद किया जाए, उसमें कुछ एक्शन लिया जाए जरूर। दोस्तों कहा गया कि जो ऐसे हत्यारे हैं जो हमारी बहन बेटियों को बड़े ही बेरहमी से कत्ल करते हैं, ऐसे कानूनों को एक तरफ सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं सामने आती है जो कि हमारे समाज को बड़े ही शर्मसार करते हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे युवा प्रधान से। सर आप इसके बारे में, इस घटना के बारे में मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि उन हत्यारों को फांसी दे, सारे फांसी के साथ क्यों होता है, तरह क्यों के साथ जब गाय मर जाती है तो हर टाइम हर समय हत्यारों को फांसी दी जाती है, लेकिन दलित समाज की लड़की के लिए ऐसा क्यों है? एक डीएम भी आज परिवार को धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ मैंने यही अनुरोध है कि हत्यारों को फांसी जल्दी युवा प्रधान का कहना था कि जो गरीब परिवारों का शोषण किया जा रहा है, ऐसे जानवरों को फांसी की सजा चाहिए और आगे से इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए। तो हमारे दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, ज्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਊਜ਼ TV ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਪਰੋਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਲ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਲ 4 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਤੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਤੀ, ਜੀਭ ਵੱਢਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਹ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਯੋਗੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯੋਗੀ ਹੁਣ ਕਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਹਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਕਹੋਗੇ? 2 ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮਨੂਵਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵਕਤ,
क्योंकि जो भगवान वाल्मीकि महाराज ने लिखा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, जो जननी का ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਟੀਆ ਦਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਡਰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਪਰੋਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਊਜ਼ TV ਧੂਰੀ। आज़ाद न्यूज़ टीवी रिपोर्टर महेश कुमार विश्वकर्मा, प्रतापगढ़। आज हमारे बीच प्रतापगढ़ के यादव समाज के जिला उपाध्यक्ष सच्चिदानंद यादव और ये हाथरस की कुछ घटना पे दुख जाहिर कर रहे हैं और प्रशासन के इस रवैये से इनको थोड़ा सा दर्द जरूर हो रहा है। जिस तरह से उस बच्ची के साथ दर्दनाक घटना हुई और हैवानियत हुई उसके साथ और बच्चे की मृत्यु हो गई, इसके साथ पुलिस के रवैये को देखते हुए इनसे रहा नहीं गया और ये उसके बारे में कुछ कहेंगे और सुझाव भी देना चाहेंगे। सर, ये जो हाथरस की घटना हुई उत्तर प्रदेश की, ये घटना बड़ी ही दुखद है। सर, मैं ये सोचता हूँ हाथरस की यही घटना नहीं, पूरे देश में ऐसी घटना घटे। अगर पुलिस अच्छे से काम न करे तो सरकार को चाहिए पुलिस को तुरंत सेवानिवृत्त कर दे, तुरंत उनको नौकरी से हटा दे और कम से कम 7 साल की सजा हो, ताकि पुलिस वाले ऐसा व्यवहार दोबारा ना करें जनता के साथ। जैसे सर, हिंदू धर्म में ये जलाने की जो प्रक्रिया है बिना किसी नोडल अधिकारी के पुलिस विभाग कैसे उसको दफना दिया? अभी ये तो सरासर नाइंसाफी है। जबकि सूर्य अस्त के बाद जो है हिंदू धर्म में कोई लाश जलाया नहीं जाता है। हम सरकार के ऊपर ज़्यादा जो है दबाव नहीं बनाना चाहते। सरकार से ज़्यादा जो है हम अपने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि सरकारें आती है जाती हैं, सरकार से मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है अपने न्यायालय के ऊपर से विश्वास उठ गया है कि इन लोगों को ऊपर कार्रवाई न्यायालय समय से नहीं करते हैं। 7-7, 8-8 साल हो जाता है, उसके बाद अभी निर्भया का 7.5 साल के बाद जो है न्याय मिला। तो हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर ऐसी केस हो तो 6 महीने के अंदर निपट जाना चाहिए। देश की बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, समय से न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए अत्याचार हो रहा है।
बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल रहा है वो कितना साबित हो रहा है सच्चाई उसमें? सच्चाई ये है कि हमारे जितने देश के पढ़े लिखे लोग हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हैं, नारा तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो अपने घर से ऑफिस, उनको दुनिया से मतलब नहीं है। वो गरीबों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, हमारे अमीर लोग पढ़े लिखे लोग ये नहीं देखते हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब अपने अपने बिजनेस में लगे रहते हैं। कैंडल मार्च निकालने से काम नहीं चलेगा जब तक अपराधी को जो है तुरंत सजा दिलाने के लिए सब सजग रहना चाहिए। 14 दिसंबर की घटना है। 14 दिसंबर की घटना में 10 दिनों तक उसको छुपाने की कोशिश की गई। छुपाने की कोशिश की गई, इसके एवज में हम यही कहना चाहेंगे जितने पुलिसकर्मी दोषी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनको तुरंत पद मुक्त कर दें और उनको कम से कम 7 साल की सजा। दरिंदे से भी बड़ा अपराधी ये लोग हैं। सिस्टम हमारा अपराधी है। अगर हमारा सिस्टम जिस दिन सुधर गया उस दिन अपराध होगा ही। तो अपने प्रतापगढ़ की जनता जो है इस घटना से बहुत ही दुखी है। शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनको थोड़ा दहशत ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि लॉ इन ऑर्डर इतना खराब होता जा रहा है। इस पे कार्रवाई का कोई डर ही नहीं होता। पुलिस प्रशासन 10 से 12 दिन बीत जाती है, गैंगरेप का कोई केस ही नहीं दर्ज करती। जब मामला इतना गंभीर होता है तब जाके वो गैंगरेप का जो है मामला दर्ज होता है। पुलिस के पास वर्दी रहती है, वो अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल करती है और गरीब लोगों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लादने में वो लगे रहते हैं और जो सही काम है उसको पुलिस कभी काम नहीं करती है। सही काम बिल्कुल बिल्कुल अपने मतलब कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं करते। अब सर ये तबादले जो हो रहे हैं, क्या तबादले से अपराध रुक सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में तबादले ज्यादा किए जा रहे हैं, क्या तबादले से अपराध रुक सकते हैं? नहीं, तबादले से तो अपराध नहीं रुक सकता है। तबादले से अपराध नहीं रुक सकता है, रुक सकता है उचित कार्रवाई करने से। जी जी। जैसे एक पुलिस अगर गलती करता है, आपराधिक गलती करता है, तो सरकार को चाहिए कि उसको सस्पेंड न करे, उसको सीधा नौकरी से निकाल देना चाहिए, तभी अपराध रुकेगा। तभी लोगों के मन में डर उत्पन्न होगा, अन्यथा कार्रवाई नहीं करेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो दोषी पाए जाने के बाद भी उनको जो है बाद में बहाली मिल जाती है। जी जी जी। हमारे देश में क्या सिस्टम है, मैंने अध्ययन किया अपने जीवन में, जो छोटे छोटे अपराधी हैं उन पे 10-10, 20-20 मुकदमे लाद के गैंगस्टर लगा दिया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो BMW से, फॉर्चूनर से विधायकी लड़ा रहे हैं, MPMLA का चुनाव लड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उनका मुकदमा जाता है, उनको कुछ नहीं होता। क्या आप इसमें प्रशासन को दोषी मान रहे हैं, सरकार को दोषी मान रहे हैं? इसमें दोष किसका? हम सरकार भी लापरवाह है, प्रशासन भी और हमारी न्याय व्यवस्था भी, सब जो है हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, महापालिका, जितनी भी पालिका है सबके सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। 90%, 10% सही है। जैसे सर सोशल मीडिया पे या हर जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर पीड़िता को एयरलिफ्ट किया जाता शायद उसकी जान बच सकती थी। निर्भया वाले कांड में उसको सिंगापुर ले गया गया था। सरकार ने यहाँ पे गलती किया, सरकार को तुरंत एयरलिफ्ट से व्यवस्था करके अमेरिका या लंदन, जहाँ पर इसकी व्यवस्था अच्छी से अच्छा इलाज हो सकता, वहाँ ले जाना चाहिए। आदित्यनाथ सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस प्रकार का बहशीपन और दरिंदगी वाल्मीकि समाज की, हमारी उत्तर प्रदेश की एक बेटी से हाथरस में हुई और उस पर पर्दा डालने के लिए रात को 2:30 बजे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ उसका संस्कार किया गया, ये अपने आप में एक दर्दनाक घटना थी।
और कल रात आदित्यनाथ जी की कठपुतली वहां के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि बेटी से अनाचार ही नहीं हुआ। आदित्यनाथ जी, काश आपकी बेटी होती तो आप दर्द जानते। बेटा या बेटी के साथ अगर दुर्घटना हो तो कितना दर्द आत्मा को किस प्रकार से लील लेता है। हमारी उस वाल्मीकि समाज की बेटी ने डाइंग डिक्लेरेशन दी है, मरने से पहले आखिरी बयान दिया है, जिसमें उसने अनाचार, गैंगरेप, बलात्कार की पुष्टि की है। जिंदा रहते हुए आपने उसे जिंदा मारा, मरने के बाद उसे झूठा साबित करने का षड्यंत्र कर रहे हो आदित्यनाथ। आदित्यनाथ, ईश्वर अगर कहीं है और जो है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस प्रकार के कुकृत्य के लिए इस्तीफा दो और उत्तर प्रदेश की जनता में जाओ, वो बताएंगे तुमको कि असलियत क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। थैंक यू सर।